हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज द हिंदू इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस। तो आज का जो डेट है 23 जुलाई 2024। तो आज हम एक एडिटोरियल न्यूज को एनालिसिस करेंगे। एडिटोरियल में दिया है, टॉपिक इज हीट स्ट्रेस इज मोर देन अ डिग्री ऑफ कंसर्न। ओके, हाउ दिस एडिटोरियल विल हेल्प यू? So this will be help you in GS paper 3. In GS paper 3, you have to study environmental conservation, protection about the climate change. तो वहां पर मेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ओके, हीट स्ट्रेस, हाउ हीट स्ट्रेस अफेक्ट ओके इंटायर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट के जो है वर्क फोर्स को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। About what are the important international guideline, what action taken by Indian government. Okay, Indian government इसके लिए क्या guideline निकाली है about the heat stress, or what about the working culture, or what prevention should be required. So ये सारी चीजों पे we will talk about in entire thing in this article. Okay, तो prelims में भी इससे questions बन सकते हैं because we will going to discuss here in different dimension. Okay, what exactly international labor organization क्या इस पे मतलब कि what are the consequences, health effect happen because of heat stress. Okay, which section of society is more vulnerable, and which part of the world, okay, which part of the world is more vulnerable, and more people will be affected because of heat stress. तो इन सारे डायमेंशंस पे हम लोग इस पूरे आर्टिकल्स में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट। सो ये आज का आर्टिकल है, ठीक है। और इस आर्टिकल के लाइन बाय लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन in each and every line, because each and every line will help you to understand, okay, the entire concept of heat stress. What is the relation between heat stress और वर्क फोर्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। किस तरह से हीट स्ट्रेस के बढ़ने से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ओके, हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे वर्क फोर्स में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, so first of all, we'll try to first focus on, okay, so in recent period, as you know, because of climate change and environmental degradation, okay, that completely no, talk about the that ask no, raise a question about the safety and health of worker worldwide. Okay, even International Labor Organization, okay, also means one of the important international institution, United Nations agency है, that basically made a law related with the labor standard all over the world. This organization was formed in 1919. Okay, इसका headquarter कहाँ है? This headquarter is Geneva, Switzerland. Okay, so heat stress is anticipated to affect labor efficiency and productivity, in turn reducing work hours and hindering the International Labour Organization objective of promoting fair and decent employment. So International Labour Organization का जो objective है, basically this organization was established for promoting, okay, fair and decent employment all over the world. तो वो कहीं ना कहीं impact हो रहा है, कहीं ना कहीं affect हो रहा है because of heat stress, labor efficiency decrease कर रही है, productivity decrease कर रही है, वर्किंग आवर जो है, ओके, स्टैंड वर्किंग आवर है जो लोगों को काम करने फैक्ट्रीज में, वो डिक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। ओके, that's completely not fulfill the objective of International Labour Organization. Okay, so workers who are particularly vulnerable to climate change hazards sometimes cannot cease working despite hazardous condition because of financial constraint. मतलब कहने का मतलब है कि जो भी वर्कर हैं, जो ऐसे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, दे आर वर्किंग इन दोज एरिया डिस्पाइट सच हैजार्डस मीन सच अ डेंजरस इन्वायरमेंट एंड हीट स्ट्रेस होने के बावजूद भी अपने काम को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको काम करना ही है, नहीं काम करेंगे तो हाउ दे विल एबल टू अर्न मनी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे उनको सैलरी मिलेगी। तो इसलिए उनको 8 घंटे का जो काम है उसको 8 घंटा ही करना है, चाहे जैसे भी हो। उनको ये मैटर नहीं करता है कितना हीट है, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, उससे नहीं, उनको अपने काम को कंप्लीट करना है बिकॉज उनकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसा कि अभी तक हीट स्ट्रेस से क्या क्या हेल्थ इफेक्ट होता है, बेसिकली इट काउज हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स। ओके, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हेल्थ इफेक्ट ऑफ, ओके, हीट स्ट्रेस से क्या क्या हेल्थ इफेक्ट हो सकता है? हीट स्ट्रोक होता है, हीट क्रैम्प्स होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सम हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी, ओके, एंड फिजिकल इंजरी होने के चांसेस है। तो दीज आर सम ऑफ दी वी कैन से हेल्थ इफेक्ट है। इवन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मतलब इट ऑलवेज पब्लिश्ड ना इंपॉर्टेंट पेपर, एनालिसिस पेपर, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज
और व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, कैसे क्या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड को, सो दैट वी एबल टू fight against the climate change. So according to intergovernmental panel on climate change state that to retain normal physiological activity, if you want to, एक हर एक इंसान का करने एक क्षमता होती है, एक एफिशिएंसी होती है कि आप इतना आवर्स का काम कर सकते हो, इस इन्वायरमेंट में अपने पूरे अपनी एफिशिएंसी से आप काम कर सकते हो इन अ बेस्ट वे। उन अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी कहने के हिसाब से टू मेंटेन अ कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ रफली 37 डिग्री सेल्सियस, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, अगर उस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में अगर आपको काम करना है तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड सेट बाय द आईपीसीसी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस का इन्वायरमेंट है तो यू कैन एबल टू वर्क इफेक्टिवली। ओके, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो सकती है। जहां टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, दैट कैन कंप्लीटली अफेक्ट योर कॉग्निटिव एंड फिजिकल कैपेबिलिटी, मीन्स योर डिसीजन मेकिंग पावर जो है, आपका थिंकिंग जो है, the thought process and physical capabilities, whether you are able to complete your task in a given time period or not, वो completely effect करता है because of if temperature increase from 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस के एक तरह का स्टैंडर्ड सेट किया है आईपीसीसी। इस टेम्परेचर में लेबर एक्टिविटी एक प्रॉपर वे में हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में हो सकता है। जहां 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, दैट कंप्लीटली अफेक्ट बोथ कॉग्निटिव एंड फिजिकल कैपेबिलिटी। So during various stages, women who are employed in heat exposed sectors such as subsistence agriculture. So India में देखने को ज्यादा मिलता है where a family worker more involved in agriculture sector. Okay, subsistence agriculture where they means ना cultivate for their own family need. वो किसी बाहर को बेचना मतलब they don't want to sell the product in the market. Okay, maybe at risk for pregnancy related complication. उनको जो और महिलाएं हैं जो ज्यादातर ओपन इन्वायरमेंट में काम कर रही हैं, जैसे कि सब्सिडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उनसे हीट स्ट्रेस से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन हो सकता है, मिसकैरेजेस होने के चांसेस है, एंड प्री मैच्योर बर्थ्स। ये सारी चीजें हो सकते हैं दोज वुमेन हु आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन डिमिनिश द वर्क प्रोडक्टिविटी। ओके, वर्क प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा बिकॉज यू नो अब भी पूरे जब टेम्परेचर ज्यादा हीट मतलब मंथ ऑफ अप्रैल मई में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, सो विदाउट एसी नोबडी वांट टू वर्क। ओके, अब भी अगर आप गर्मी में बैठकर पढ़ रहे हो तो यू विल नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली, आपको ध्यान में आएगा नहीं, यू विल नॉट एबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं वो डिक्रीज कर देता है ड्यू टू ज्यादा हीट से, एंड मेक इन डिफिकल्ट टू वर्क, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। So there is a need for personal to operate at a slower pace. Okay, so there is a need to, we should do something how we able to work effectively. दूसरी बात करते हैं व्हाट इस स्टडी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सर्वे अपने रिसर्च में पाया है फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, क्या है कि आईएलओ स्टडी को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 2019 स्टडी में एस्टिमेटेड किया हीट स्ट्रेस इज प्रोजेक्टेड टू रिड्यूस टोटल वर्किंग आवर वर्ल्ड वाइड बाय 2.2% एंड ग्लोबल बाय 2400 billion in 2040 2030. Okay, so according to international labor organization, okay, that study it was conducted in 2019, it said that heat stress is projected to reduce total working hour 2.2% global. Okay, पूरे वर्ल्ड में जो वर्किंग आवर जो है दैट विल बी डिक्रीज बाय 2.2%, और जीडीपी जो है उस टोटल 2400 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030, मतलब इतना रिड्यूस करेगा जीडीपी, इंपैक्ट होगा बाय 2020 बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस। तो ये काफी बड़ा नुकसान लग रहा है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टडी में ये भी पाया गया कि विच सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर आर एक्सपेक्टेड टू बी द वर्स्ट अफेक्टेड। जो वर्कर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड construction of buildings, and also required a lot of stress. Okay, lot of stress is required. Okay, because of this तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाइंडिंग में ये पता किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर इज मोर अफेक्टेड। ओके, वर्स अफेक्टेड। सो एग्रीकल्चर वर्कर फेस सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क फ्रॉम हीट देन द वर्कर इन अदर ऑक्यूपेशन। Okay, so agriculture sector will be more vulnerable as compared to other, okay, other occupations है जैसे कंस्ट्रक्शन है, सर्विस सेक्टर, दे ऑल आर सेफ, जो कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, उनका ज्यादा हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर।
सो रिसेंटली ILO 2024 का एस्टिमेट ये बताता है कि मोर देन 2.41 बिलियन वर्कर वर्ल्ड वाइड आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम है। ओके, तो अभी 2024 का जो स्टडी है उसमें पता चला कि कितने टोटल नंबर वर्कर इज एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट, कौन कितने हैं, 2.41 बिलियन वर्कर्स, 2.41 बिलियन वर्कर्स पूरे वर्ल्ड वाइड में ज्यादातर इफेक्ट होंगे। नाउ द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन एक्सपीरियंस द हाईएस्ट जीडीपी लॉसेस ड्यू टू हीट स्ट्रेस अफेक्टिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। अब पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है, एशिया। ओके, दिस एशिया रीजन, ओके, एशिया एंड पैसिफिक, okay, the Pacific regions are more affected because of heat stress, क्योंकि यहाँ पर climate is not same everywhere, there is a difference in climate, climate is not same, okay, यहाँ पर vegetation है, rainfall activity is not the same, so this region will be more affected as compared to other part of the world, and यहाँ पर सबसे ज्यादा GDP का decrease होगा। So projection indicate that Thailand, okay, some country like Thailand, Cambodia, and India will experience significant decline in their national GDP by 2030 with decrease over 5%। मतलब कि कंट्रीज लाइक थाईलैंड है, कैम्बोडिया, इंडिया, ये तीन ऐसे कंट्रीज के नाम दिए गए। दिस इज द नॉट स्पेसिफिक कंट्री, बट ऑल अदर कंट्रीज इन द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, एशिया रीजन के भी इफेक्ट होंगे। लेकिन इस कंट्री की क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके, डाइवर्सिटी ज्यादा है, ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा वर्ल्ड पे डिपेंड करता है। So that's why means there इनका जो है GDP this will be decrease over 5%। Okay, what other finding by the ILO, ILO ने और क्या finding किया है about the heat stress and worker। Further ILO के according ILO क्या कहता है कि Southern Asian and Sub-Saharan Africa are most susceptible to experiencing declines in labor productivity due to heat stress। तो Southern Asia मीन साउथ एशिया की बात करते हैं, लाइक कंट्री लाइक इंडिया हो गया, ठीक है, इसमें आपको श्रीलंका आ गया, ओके, बांग्लादेश, नेपाल, ऑल दिस कंट्रीज द पार्ट ऑफ साउथ एशिया। सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका का सब सहारन अफ्रीका, एज यू नो, अफ्रीका के भी पार्ट जो कंप्लीटली दिस इज द सहारा डेजर्ट यहाँ पर है। ओके, दिस एंटायर कंट्रीज हियर, ओके, दे आर मोर ससेप्टेबल टू, ओके, लॉस ऑफ जॉब, ओके, लेबर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस, एंड दे आर ऑलरेडी वनरेबल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। साउथ एशिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओके, पॉपुलेशन ज्यादा है, मोस्टली एग्रीकल्चर इकोनॉमी डिपेंड करता है, एंड देयर इकोनॉमी इज मोस्टली एग्रीकल्चर एंड डिपेंड ऑन monsoon rainfall, or monsoon rainfall is not good, okay, so they already vulnerable to the climate change, and most of the world poor population which counteracts effort due to reduce inequalities। so world का maximum जो poor population है, they reside in this part of the world। so here these regions will be become a more no, we can say a vulnerable with respect we talk about heat stress। the countries that are most susceptible to experiencing decrease in productivity are those having significant proportion of their workforce employed in agriculture and construction sector, as well as those situated in the tropical and subtropical latitude। so international labor organization कहता है क्या कि वैसे कंट्रीज ज्यादा अफेक्टेड होंगे, ओके, ससेप्टेबल टू एक्सपीरियंसिंग डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जहां पर मैक्सिमम एग्रीकल्चर, ओके, जहां पर एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स ज्यादा एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ज्यादा इंगेज है। इंडिया में कितने हैं, अगर हम इंडिया में बात करें तो अगर 50 to 55% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में जो लेबर फोर्स है 50 to 55%, तो इंडिया, दैट्स व्हाई इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री वेयर दैट ना ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेबर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस। साथ में कहा कि ऑल दोज कंट्रीज, आल्सो दोज कंट्रीज दैट रिलेटेड situated in the tropical and subtropical regions। so tropical regions like, okay, सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज हैं पार्शली और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में है, मतलब कहने का मतलब कि 0 से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड जो जितने भी कंट्रीज हैं, ओके, और उन कंट्री की जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम जो कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन वर्कर पर ज्यादा डिपेंड है, देयर पॉपुलेशन विल बी this country will be more their productivity will be decreased because of heat stress। so decline in available working hour and output among all, a small scale and subsistence farmer expected to affect household food security। तो those family who are doing subsistence agriculture, वैसे फार्मर एक्टिविटी जो कि खुद के फैमिली के लिए ही सिर्फ जो भी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनका मतलब क्या होगा, दैट डिक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, और कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी चैलेंज आएगा यहाँ पर, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, बिकॉज प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज, सो प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप विल बी डिक्रीजेस। सो हीट स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट लेबर आवर्स, ओके, लेबर आवर्स को इंपैक्ट करता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है, एंड इम्पैक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द रीजन्स एंड जेंडर। ये भी कहता है कि इट इज नॉट यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि
अगर हम एशिया बोलते सारी एशियन कंट्री ही हीट इफेक्ट से हीट स्ट्रेस से अफेक्टेड है, ऐसे नहीं. दोज कंट्री वेयर maximum number of labor force are depend on agriculture sector and construction activity. Okay, or that will be a more affected. Heat stress pose concern that have potential to exacerbate gender disparity. और इसमें क्या gender disparities भी होने के chances हैं. Okay, there will be discrimination on the basis of gender in workforce, particularly by deteriorating working condition for the numerous women engaged in subsistence agriculture. Okay, women labor participation in workforce will be decreases. That is again not good for the country. Okay, so excessive heat stress also क्या करेगा, this will be also no affect, this will also act as a one obstacle to achieve various goals that set under the sustainable development goals. Sustainable development goal में total 17 goals है, and we have to achieve the 17 goals by 2030. जैसे hunger, poverty, okay, climate change, employment, urban मीन्स क्लीन एयर. तो ये सारे चीज को अचीव करने में, टारगेट को अचीव करने में हीट स्ट्रेस, ज्यादा हीट स्ट्रेस होगा, दैट विल बी आल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट इन द अचीवमेंट ऑफ वेरियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट goals. Okay, these all are the finding of the International Labour Organization. You can write all this point in your answer whenever any question will become, okay, in your mains exam regarding, okay, what are the consequences of heat stress, क्या हो सकता है. तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये फाइंडिंग्स को आप लिख सकते हैं. That will be very good for your and you will able to have a good marks. Okay, now India perspective से बात करते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है. So India is undergoing a consistent increase in temperature annually. इंडिया में भी बिकॉज क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट यही बताता है कि इंडिया में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. ओके, बाय 2030 an estimated 160 million to 200 million individuals around the nation may face the risk of experiencing deadly heat waves every year. कहने में 2030 आते आते इंडिया में 160 से 200 मिलियन इंडिविजुअल्स इन इंडिया विल एक्सपीरियंस अ extreme deadly heat waves. Okay, heat wave means extreme heat wave. This all are consequence of climate change. और ज्यादा से ज्यादा इंडिया में जो डेड हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं जो कि डेथ होगा, दैट विल बी हैपन बिकॉज ऑफ हीट वेव्स. So approximately 34 million people in India will experience job loss due to reduced productivity and caused by heat stress. Productivity decrease करेगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली देन इनकम किसी भी कंपनी का इनकम ज्यादा होगा नहीं. दे विल नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, एंड पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. So demand will be the same, demand will be increased and productivity will be, supply will be decreases because of productivity will decrease करेगा. So company will not able to able to मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहेगी एंड ज्यादा से ज्यादा लॉस होंगे, क्या जॉब लॉस होने के चांसेस है. स्टडी इन वेस्ट बंगाल, one of the state in India, so that the temperature increased by 1 degree Celsius, there is a corresponding decrease approximately 2% in the productivity of the female brick making worker. So वेस्ट बंगाल में अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, देयर इज डिक्रीज इन 2% इन फीमेल वर्कफोर्स. ओके, प्रोडक्टिविटी और फीमेल ब्रिक वर्किंग का डिक्रीज करता है 2%. ओके, जो महिलाएं जो ईट बनाने में जो मीन्स इंगेज है, उनका जो प्रोडक्टिविटी वो 2% डिक्रीज कर रहा है. मीन्स दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क इन ए गिवन टाइम पीरियड. ओके, जो 8 आवर्स का काम है उसको 6 आवर 5 आवर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट वेव्स. ओके, एक्सट्रीम हीट होने की वजह से तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं 1% इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर. तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, तो देयर विल बी डिक्रीज इन 2% in productivity in female brick making worker. So India is the country that experienced the most impact from heat stress. In 1995, it lost 4.3% of its working hour, which is anticipated to increase 5.8% by 2030. तो 1995 में इस एक क्या था, 4.3% था. ओके, एंड देन 2020 में कितना आ गया, ये 5.8%. 2030 आते आते दिस विल बी अ 5.8% हो जाएगा डिक्रीज इन वर्किंग आवर बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस. तो इंडिया में सिचुएशन काफी मतलब बुरा हाल है. ठीक है, गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना होगा सो दैट वी एबल टू ओके fight against this heat stress. In addition, India is expected to experience a significant decline in full-time employment by 2030. Full-time जो employment है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा. मीन्स पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम जॉब विल बी मोर. ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्ट टाइम जॉब करेंगे सो दैट दे एबल टू ओके ज्यादा उस समय काम करेंगे जो कि उनके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा. ओके, कंफर्टेबल होगा, ज्यादा हीट स्ट्रेस, हीट और ज्यादा टेम्परेचर में काम करना नहीं चाहेंगे. सो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा एज रिजल्ट ऑफ हीट स्ट्रेस, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन. क्योंकि आज के समय लार्ज पॉपुलेशन क्या डिपेंड मोर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है.
पार्ट टाइम का स्कोप बहुत ही कम है, लोग पार्ट टाइम बहुत कम करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू अर्न अ गुड मनी। ओके, पार्ट टाइम उनका इनकम उतना अच्छा हो नहीं पाएगा, लेकिन ये बता के आ रहा है कि 2030 आते आते फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगा, देयर विल बी डिक्लाइन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, एंड also that will affect large population. Further, migrant worker often work in hazardous and physically demanding job, primarily in the informal economy. जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैसे इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, वैसे सेक्टर में काम करेंगे जो काफी डेंजरस है, जहां पर वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, जहां पर हीट स्ट्रोक होने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इनको उनके पास फाइनेंशियल और लाइवलीहुड के लिए कोई और अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो दैट्स व्हाई दे विल बी इंगेज इन मोर इनफॉर्मल इकोनॉमी। They are particularly vulnerable to risk posed by the climate change as they usually lack occupational safety. क्योंकि कोई occupational safety नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन, कोई कंपनी छोटी मोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती नहीं है, तो सेफ्टी इशू वहां पर बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। हेल्थ प्रोटेक्शन, एसेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे की कमी के कारण दे आर मोर वनरेबल। ओके, एक तो फाइनेंशियल कंस्टेंट उनको उस एरिया में ढकलेगा कि जाओ आप इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करो। ओके, और इनफॉर्मल इकोनॉमी के चैलेंजेस क्या हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को फॉलो नहीं करती है, देयर इज नो हेल्थ प्रोटेक्शन, एसेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे चीजों के कारण जो माइग्रेंट वर्कर है दे आर मोर वनरेबल। ओके, इनफॉर्मल वर्कर में कंटिन्यू वर्किंग डिस्पाइट द रिस्क ऑफ देयर हेल्थ फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सबसे बड़ा चीज क्या है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। इनफॉर्मल वर्कर चाह कर भी वो काम को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, पैसे की जरूरत है। ओके, फैमिली चलानी है। ओके, देयर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम, तो चाहे हीट स्ट्रेस, हीट वेव चाहे जितना भी हो, उनको क्या है, काम करना है। एंड दिस आर द ओके सेक्शन सोसाइटी, दे आर मोर वनरेबल। सो देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन द एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। अभी क्या करना है हमें, नीड ऑफ द आवर क्या, एडेप्टेशन, वैसे चीजों को एडेप्टेशन करना है, एंड मिटिगेशन। तो मिटिगेशन मतलब हो गया you should shift, okay, something generate a new type of job, okay, new standard rules and regulations so that वर्कर्स के लिए एक स्टैंडर्ड माहौल हो, ओके, इफेक्टिव इन्वायरमेंट हो जहां पर वो ढंग से काम कर सके। अडेप्टेशन मींस जो भी चल रहा है उसके वो अडेप्ट करे उसको बाय न्यू टेक्नोलॉजीज, ओके, एट द ग्लोबल, नेशनल एंड वर्क प्लेस लेवल टू रिड्यूस द डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन वर्कर। ओके, तो इंटरनेशनल को नेशनल एंड वर्क प्लेस, every stakeholder should be take okay action against the heat stress, और वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जिससे कि दिस विल बी एबल टू protect the life of the worker and also increase the productivity। अभी बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हीट स्ट्रेस के लिए। तो देयर नेशनल गाइडलाइन अंडर द प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है कि दिस इज अ नेशनल गाइडलाइन बाय इंडियन गवर्नमेंट, प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान। Okay, what action plan? Prevention and management of heat wave by the National Disaster Management Authority in collaboration with Ministry of Home Affairs। तो इंडिया में बेसिकली एक गाइडलाइन है, ओके, एक्शन प्लान है कैसे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट करना हीट वेव का। दिस गाइडलाइन डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंडियन वर्कफोर्स फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है, मीन्स डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ओके, जो भी हीट इफेक्ट है, हेल्थ इफेक्ट है, दैट मस्ट बी अ डिक्रीज। ओके, उसमें मेथड बताया गया, प्रिवेंशन ही है, किस तरह से क्या व्हाट वे आप काम करो जिससे कि आपकी हेल्थ को हीट वेव की वजह से आपका हेल्थ ज्यादा इफेक्ट ना हो, और आपकी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो ज्यादा एक्सट्रीम ना हो, एंड यू एबल टू अर्न गुड मनी। ओके, सो दे आर डिजाइन टू हेल्प पब्लिक ऑफिशियल क्रिएट हीट वेव एक्शन प्लान फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। तो अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों के लिए बनाया गया है, विथ फोकस ऑन जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनके उनके लिए है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज हाईलाइट द, क्या क्या हाईलाइट है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू वर्कर। ओके, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन मींस लाइक मतलब क्या आप प्रिकॉशन लो, ओके, व्हाट टाइप ऑफ व्हाट ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर ज्यादा आप हीट वेव और हीट टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर में अगर आप काम कर रहे हो तो उसके आपके हेल्थ इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ओके, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरिंग प्रॉपर हाइड्रेशन, ओके, वाटर फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। मैनेजिंग वर्क शेड्यूल्स, वैसे शेड्यूल्स और वर्क शेड्यूल होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स उस समय काम करें, ज्यादा जिस समय टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, and offering necessary medical facilities. These are the all mentioned in the plan. Okay, that is preparation of action plan में ये सारी चीज है। education provide करना, proper hydration, okay, managing work schedules, okay, offering necessary medical
facilities whenever there is a requirement. So there is general discussion committee on the International Labour Conference in June 2023 highlight the urgent need to implement measures to ensure the safety and the health of worker impacted with the climate related risk and extreme weather event. ओके सो एक इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ 2023 में, जनरल डिस्कशन हुआ कि क्या अर्जेंट नीड है, देयर इज अ अर्जेंट नीड. ओके, it should be like implement this some policy and program for the safety and health of the worker that is impacted because of climate related risk and extreme weather event. So this involved tackling the effect of in their mental and physical well-being and advocating of secure and conducive working environment. Okay, there is a requirement of mental and physical well-being. This is their cognitive, okay, decision making power, thought process, thinking, that will be also, and physically fit हो तभी जाके they were able to work proper in this particular environment. Also the in this general discussion में ये बताया गया है क्या, okay, about the in this regard it is crucial for all stakeholders, okay, including government, employers, workers, okay, जितने भी stakeholders हैं, government, employer, workers, okay, to collaborate implement the measures that prioritize the protection of the most vulnerable individuals. They have not only the central government, state government, private sectors also, and even worker by education awareness they should know. Okay, action plan, क्या action plan है, what precaution and management should be required. This measure should be include development of sufficient infrastructure by early warning system and for extreme event. Okay, इसमें क्या है कि हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए. Okay, that give a guideline for the next 15 days what would be the temperature of given location, कि कितना टेम्परेचर बढ़ने वाला, वेव आ रहा है या नहीं आ रहा. Okay, this type of information should be share in advance so that एक्शन लिया जा सके टाइम पे. ओके, टाइम पे प्रिवेंशन किया जा सके. Additionally, there should be a focus of improving implementation of international labor standard that are related to the occupational safety and health. तो जो भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी स्टैंडर्ड सेट आउट किया है एंड न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग workers for the safety of the worker, okay, protection of the worker from the heat stress, that should be implemented in a more proper way. This will ensure those affected by heat stress are provided with the suitable working condition. Okay, also जो भी ज्यादा जैसे कि vulnerable section कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ओके, ऐसे जो एरिया इस तरह के सेक्टर में जो लोग काम करे वो ज्यादा vulnerable है, तो उनका सेफ्टी मिल रहा है कि नहीं, देयर शुड बी इंश्योर अबाउट द सेफ्टी. ओके, कि वो सेफ्टी से एंड दे आर फॉलो द गाइडलाइन और नॉट. ओके, तो दिस शुड बी रिक्वायर्ड ensure that those affected by heat stress are provided with suitable working condition. Effective communication is between worker and employer is essential to facilitate the adjustment of working hour. Okay, communication should be there should not be communication gap. Okay, everybody should know the working hours, क्या working hour है and time period क्या होना चाहिए, which during the daytime 12 noon to 2 p.m. Okay, 3 p.m. this is the time when no ज्यादा heat stress रहता है, उसमें ज्यादा टेम्परेचर रहता है, उस समय शायद maybe there will be a gap of 2 hours 3 hours gap होना चाहिए. Okay, guarantee adequate rest break होना चाहिए, provide access to drinking water होना चाहिए, offer training on the identification and management of heat stress. ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए कि अगर ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखता है देन यू शुड टेक अ रेस्ट. ओके, एंड डिफरेंट डायमेंशन पे ट्रेनिंग होना चाहिए सो दैट वर्कर शुड अवेयर अबाउट देयर ओके राइट्स, ओके, देयर राइट्स एंड क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो भी इंपॉर्टेंट है. सो दिस कैन बी हेल्प टू एलिविएट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस. तो इन सारी चीजों से हम लोग जो हीट स्ट्रेस को, क्योंकि इसको तो कम नहीं किया जा सकता, इसको कम करने के लिए पूरे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे दे ऑल आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, लाइक पेरिस एग्रीमेंट में साइन हुआ. ओके, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, तो इट विल टेक टाइम, ओके, टू रिड्यूस द टेम्परेचर. लेकिन अभी जो नीड ऑफ द आवर है कि वी शुड फॉलो ऑल दिस गाइडलाइन सो दैट जो नेगेटिव इफेक्ट है हीट स्ट्रेस को उसको हम लोग पॉजिटिव में करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं. ओके, दैट विल बी आल्सो सेफ्टी फॉर द इंटायर इंडिविजुअल. तो इसमें है क्या, जनरेशन ऑफ ग्रीन जॉब्स. ओके, थिंक ऑफ द ग्रीन जॉब. ग्रीन जॉब होता क्या है, द गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट एडिक्वेट रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स, ओके, in occupation that are susceptible to heat waves in order to ensure safety and well-being of the workers. जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट शुड बी लाइक पार्लियामेंट शुड कम आउट विद द न्यू लॉ. ओके, लेबर्स लॉ, न्यू लेबर्स लॉ आना चाहिए. गाइडलाइन गिवन टू ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, ओके, और फैक्ट्रीज इंडस्ट्री जितने भी हैं सबको गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहिए कि दिस ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल में, ओके, मार्च अप्रैल एंड में, दिस आर द एक्सट्रीम वेदर इवेंट
वाले मंथ होते हैं जिसमें थंडर स्टॉर्म्स, हीट वेव ज्यादा होते हैं, तो उस समय क्या गाइडलाइन हो, उस समय वर्किंग आवर्स क्या होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मेजर्स सच एज इंप्लीमेंटिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड should be safeguard indoor workers. Okay, that infrastructure पे focus होना चाहिए. Considering the current climate change scenario, decent and green employment emerges as a promising solution for the future of work. तो climate change और जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही है प्रेजेंट डे में, तो उसमें सब उसका सोल्यूशन क्या है? देर इज अ ग्रीन एम्प्लॉयमेंट इमर्जेस. So green jobs are employment opportunity that are protect or restore the environmental while also supporting economic and social well-being. तो ग्रीन जॉब से हम क्या समझते हैं? ग्रीन जॉब से मतलब यही हुआ कि दे एबल टू वर्क effectively, okay, without any health effect, without any financial difficulties. उनका जो financial और economic social condition है, that should be always maintained. At the same time, availability the work also available throughout the time period. Okay, तो गवर्नमेंट को ऐसे गाइडलाइन, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे मतलब सारी तैयारी करनी होगी जिससे कि लोगों को काम भी रहे, काम भी करें और ज्यादा से ज्यादा वो हेल्थ इफेक्ट को इम्पैक्ट भी ना हो. ओके, सो ये पूरा इस आर्टिकल में बताया गया है अबाउट स्ट्रेस और वर्कर प्रोडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या सॉल्यूशन है. ओके, सो ऑब्वियसली दिस इफ एनी क्वेश्चन विल कम इन योर मेंस एग्जाम, okay, from heat stress and work labor productivity, you can now easily write. Okay, so I hope this video help you to understand the entire article. If अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो you can subscribe my channel for more update, and I will create more video on this type of editorial analysis. Okay, thank you everyone.